Now we start with the mitosis part. In mitosis, the diagrammatic representation in front of you. अभी से इतना रहने देते हैं and we discuss the mitosis in this side one by one. First of all, we should know the mitosis is given by Strasburger and Fleming. दोनों साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया था. स्ट्रैसबर्गर ने प्लांट में और फ्लेमिंग ने एनिमल्स के अंदर एक्सप्लेन किया था. नाउ फ्रॉम द बेसिक ऑफ द माइटोसिस, अगर हम बेसिक की बात करें, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहली बात, द माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन. द माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन. व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन? इट मीन्स अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, 2 डॉटर सेल हुई, तो 2 डॉटर सेल्स विल ऑल्सो हैव 46 क्रोमोसोम. इक्वेशनल, दोनों को इक्वल, अपने इक्वल डिवीजन पर रखना है. ठीक, तो माइटोसिस इन द इक्वेशनल डिवीजन. अब माइटोसिस अगर इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर है, तो माइटोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे हम? द माइटोसिस शुड बी डिफाइंड एज, mitosis should be the mitosis should be defined as in which the daughter cell will be exact replica of parent cell with the equal number of chromosome, genetic part and equal hereditary information. Equal hereditary information. ठीक. Now we will move that mitosis again occur in 2 parts. First, the same interphase and the mitotic phase. The mitotic phase वही cytokinesis and the karyokinesis. Interphase हम लोग कर चुके हैं. We are not going to discuss with the interphase. Now we are dealing with the M phase or the mitotic phase. It is divided into different parts: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and next the cytokinesis. It means ये पार्ट क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस. तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हो गए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, द टीलोफेज. ठीक, डिस्कसिंग इट विद वन बाय वन. हियर इज द डायग्राम ऑफ प्रोफेज. मैंने इसे 3 डिवाइड किया है: अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज एंड द लेट प्रोफेज. अगर वन बाय वन हम प्रोफेज के बारे में जाने, तो सबसे पहले यहां पर जो क्रोमेटिड्स होंगे, जो क्रोमेटिन होंगे, जो क्रोमेटिन फाइबर्स विल बिकम शॉर्ट एंड थिक. Chromatin fibers now goes to condensation. They will become condense. Chromatin fibers appear होना शुरू हो जाएंगे. You can see centriole starts moving to the other pole. Move to the other pole. ठीक. And at the last of the prophase centrioles are at the opposite
opposite pole, the nuclear membrane is going to disappear. The nuclear membrane is going to disappear. Nuclear membrane disappears and the cell will move to next phase, the metaphase. ठीक. Also we should know in prophase the decondensed fiber make a cotton wool appearance. The decondensed fibers will appear like a cotton wool appearance known as the spireme stage. This is known as the spireme stage. एक cotton wool appearance देते हैं जिसे हम spireme stage भी बोलते हैं. ठीक. Now we are going to move to the next. Metaphase. Metaphase की बात करते हैं. This is the metaphase. We can see the chromosome appears. क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो गए. ठीक है. अब क्रोमोसोम के दोनों पार्ट नजर आ रहे हैं, क्रोमाटिड्स. वी कैन सी द क्रोमाटिड्स हियर. मतलब कि हम इसी स्टेज के अंदर वी कैन डू द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स. We can do the microscopic study of the chromosomes. Now what is happening? There is spindle fiber formation. Now there is a spindle fiber formations from the centrioles, and these spindle fibers are attached. They are attached to what? This is the chromatids, or you can say chromosomes. What is this? Centromere and the spindle fiber attached to the centromere. The spindle fiber attached to the centromere. The spindle fiber attached to the centromere, and that attachment part is known as the kinetochore. This attachment part is known as the kinetochore. These are chromatids. The whole is the chromosome. Now the spindle fiber which are attached to the centromere and the chromosome lie at the equatorial plate. आप देख सकते हैं center of the cell, equatorial plate. This is the equatorial plate. Diagram थोड़ा ठीक ठाक से है, but it is the equatorial plate. This is the equatorial plate, center of the cell. The chromosomes lie at the equatorial state in the metaphase. अब chromosomes दूर दूर जाना शुरू होंगे. They are going apart. Spindle fiber chromosome को खींचेगा, and the chromosomes will move to the polar sides. अब वो polar side जाना शुरू करेंगे in the anaphase. Next, moving to the anaphase. Now what is the catch? अगर हम यहाँ anaphase की बात कर रहे हैं, if you are talking about the anaphase here, अगर हम यहाँ anaphase की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक catch क्या है? अब देखिए कि एक सेंट्रोमियर है. दिस इज द थिंग. ठीक. एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, डबल नंबर ऑफ डीएनए हो चुका है. अगर डीएनए यहां था तो उसका रेप्लिकेटेड पार्ट यहां पर आ गया है. हर एक क्रोमोसोम के अंदर एवरी क्रोमोसोम हैव डबल नंबर ऑफ डीएनए. ठीक. मगर अब तक हमें यहां क्रोमोसोम सेम नजर आ रहे हैं. क्रोमोसोम उतना ही है.
माइटोसिस क्या बोलता है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जाना चाहिए, तो डीएनए तो डबल है बट क्रोमोसोम हमें उतने नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो हमें क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं, जो क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है, द क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट विद इट्स टू साइड्स, दो आर में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली द रियलिटी इज, अगर आप इसे इस साइड से देखेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक अ वन आर्म, बट क्रोमेटिड्स के एक्चुअली यहाँ पर दो आर्म होते हैं। तो अगर यहाँ पर रियलिटी कैसी होनी चाहिए, द रियलिटी इज लाइक दिस, द रियलिटी इज लाइक द रियलिटी इज लाइक दिस। अब दो आर्म होंगे इसके, ठीक है, स्प्लिट, दो आर्म होंगे, द रियलिटी इज लाइक दिस। तो जब ये स्प्लिट होगा, जब एक क्रोमोसोम स्प्लिट होगा तो इसका ये वाला हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग, तो हमारे पास आधा डीएनए उस साइड चला गया, आधा डीएनए इस साइड चला गया, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, द टू आर्म ऑफ द क्रोमोसोम स्प्लिट। ठीक, समझ में आया? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द एनाफेज? अब एनाफेज में क्या हैपन हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द एनाफेज? द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, splitting of the centromere। splitting कैसी? वही as I told you, this is the one, the splitting is there। the splitting is there as I told you। स्प्लिट कर जाएगा, आर्म तो दो है ना बच्चों, टू आर्म, दोनों आर्म स्प्लिट हो गई, तो यहां पर भी डीएनए आ गया, यहां पर भी डीएनए, यहां पर भी, यहां पर भी, द रेप्लिकेटेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों अलग अलग हो गई। द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, splitted chromosome will move apart, दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कैच? अब हम एक बात को देख रहे हैं, here see this is the thing। ठीक, अब जो सेंट्रल प्रेजेंट है, ठीक, सेंट्रियोल से लेट मी मेक इट अगेन। सपोज कीजिए कि आपके इक्वेटर प्रेजेंट थे, दिस इज द थिंग। सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हैं, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। और जो डायरेक्ट सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल कनेक्ट है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स। अब फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं, द फाइबर स्ट्रेचिंग, उसमें एनर्जी लगती है हमेशा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज देयर। और फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं, स्प्लिट हो गया फाइबर के स्ट्रेच होने से, जैसे ही स्ट्रेच हुआ, दोनों स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स के पास भी एक फाइबर्स नजर आया, एंड दिस फाइबर इज नोन एज द इंटरजोनल फाइबर्स। दिस फाइबर इज नोन एज द इंटरजोनल फाइबर्स। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर एट द एंड ऑफ द मेटाफेज, स्प्लिट हुआ क्रोमोसोम, दोनों तरफ एक तरफ चले गए, सेंटर में फाइबर बना, इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, दिस इज द इंटरजोनल फाइबर्स, हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज द
इंटरजोनल फाइबर्स, दीज आर द इंटरजोनल फाइबर्स। तो अभी क्रोमोसोमल फाइबर प्रेजेंट है, कंटिन्यूस फाइबर भी प्रेजेंट है और इंटरजोनल फाइबर भी यहाँ पर नजर आ जाता है। ठीक, दिस इज अ होल फॉर द एनाफेज। आई होप यू गॉट कि कैसे स्प्लिट हुआ होगा वो। Now in the telophase, we can see all the chromosomes move apart, move to the polar side. Start decondensation is started. अब वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सारी ऑर्गेनेलीज भी अलग अलग चली गई होंगी। ऑर्गेनेलीज मूव टू द पोलर साइड्स। जो डबल ऑर्गेनेलीज थी, आधी इस तरफ आधी उस तरफ। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट अपीयरिंग। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनवेलप भी स्टार्ट हो गया का बनना। ठीक है, एंड एट द लास्ट साइटोकाइनेसिस स्टार्टेड। साइटोकाइनेसिस स्टार्टेड एट द लास्ट साइटोकाइनेसिस स्टार्टेड। अब आपके यहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन इज देयर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द सेल will move to the cytokinesis. With the constriction of the cytoplasm will be there and the cell split into two. Now the cells will formed in the mitosis have equal amount of DNA and the equal amount of cytoplasms and the organelles are there. ठीक है, equal amount of DNA, equal amount of chromosomes and equal amount of organelles are there. Now you can remember it. Prophase, decondensation started. आपके वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया, सेंट्रियल मूव कर गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, अटैच हो गए, अलग अलग कर दिया। ठीक है, फंडा वही कि एक क्रोमोसोम ऐसे बट इट हैव टू आर्म्स एंड इट विल स्प्लिट। तो क्रोमोसोम भी आधे आधे हो गए जितने भी थे, और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हमारे पास था ही, वो भी स्प्लिट आउट हो गया। एट द एंड द सेल एंटर टू टेलोफेज, दोनों पोलर साइड हो गए, स्पिंडल फाइबर्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप आना शुरू हो जाएगा, एंड एट द सेल लास्ट में विल मूव टू cytokinesis. The cell will move to the cytokinesis state. Now there is a question always is there in the anaphase. अगर हम anaphase की बात करते हैं, anaphase के अंदर क्या है कि जब स्प्लिटिंग होती है, when there is the splitting is there, तो जो हमारे डॉटर क्रोमाटिड्स बने, जो डॉटर क्रोमोसोम्स बने, जो अलग अलग पोल की तरफ मूव आउट हो रहे हैं, जो अलग अलग पोल की तरफ जा रहे हैं, what will happen in these? The shape of the daughter chromosomes will like V shape, J shape and I shape. डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर की पोजिशन कैसी है, वो इन तीन शेप्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक अगर है सेंट्रोमियर यहां है, a V shape is there, a J shape is there, and the I shape is there. So depending upon the centromere position, the daughter chromatids will appear in the V, J and I shape in the stage of anaphase. ठीक, this is the whole for the mitosis. Now we should know what is the use of the mitosis. अब mitosis, first thing,
माइटोसिस गोनाड सेल के अंदर भी होता है और माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर भी होता है। तो सीधा सा इट विल लीड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड सेल्स, अगर सेल्स नई जनरेट हो रही हैं, अगर माइटोसिस अच्छा खासा हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन हीलिंग, वो हीलिंग के अंदर भी हेल्प करेगा, नई सेल जनरेट करेगा। क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स आर देयर, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स हैं, डॉटर सेल्स, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इट विल मेंटेन द रेस, अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखेगा, इंफॉर्मेशन को आगे इनहेरिटेंस कर रहा है, आगे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इट विल मेंटेन द रेस। ठीक, लास्ट, इट अकर्स इन बोथ sexual and asexual organisms. These are 4 points we should know. First, helps in growth and development. It helps in healing of the wounds. It will maintain the race क्योंकि बिल्कुल identical cells बन रही हैं बिल्कुल, and it occurs in both sexual and the asexual organisms. ठीक, this is the whole about the mitosis. Just read it once or twice and you will remember it. Done. This is the whole thing about the mitosis. Thank you.